हे एवरीवन, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो बड़े दिन बाद एक काइंड ऑफ वीलॉग है, काइंड ऑफ क्या कहें इसको, हम वीलॉग कहें या इंटरव्यू कहें। करण कुंद्रा का जनाब हम वीलॉग कह लेते हैं। एक वीलॉग है, एक्सप्लोरिंग अल्फाहदी डिस्ट्रिक्ट विद करण कुंद्रा इन योर नेबरहुड, एपिसोड 1, करली टेल्स। तो आइए देखते हैं। और अगर चैनल पे हैं आप लोग नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नई नई वीडियो सजेस्ट कीजिएगा। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि हम आजकल जो है ना रिक्वेस्टेड वीडियोस पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। हम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं जी, बस थोड़ा सा मसरूफियात, थोड़ी सी आप कह लें कि लिस्ट में गड़बड़ हो गई तो इस वजह से। और वो सारी गड़बड़ हुई है, एक वीडियो हमारी डिलीट हो गई थी हमसे, यानी उसका रॉ डाटा भी डिलीट और प्रोसेस्ड भी। तो इस वजह से वो लिस्ट आगे पीछे हो गई है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो शुरू करते हैं जी, 3 2 1 एंड गो। Now, Ekdam, you're looking local. You're looking like Karan Kandura. करण कंदूरा। कंदूरा। Good on you. करण ये कंदूरा मीम बनेगा। बन भी सकते। Do you ओके। think Dubai is all about tall skyscrapers? Well, today I'm at this historical neighborhood in the Old Seif in Al Fahidi district. Now, we're going ओल्ड to be सिटी exploring this देखेंगे place आज। that has a lot of local shop and a traditional vibe going on. But I'm not going to be exploring this all alone. I have a very special guest that's coming all the way from India. आ रहा He's है। Indian television's handsome hunk and a favorite reality TV star. Not just that, he's one of my favorite contestants from the Big Boss house as well. We are meeting the charming Karan Kundra. करण कुंद्रा। यल्ला हबीबी। Oh, hi Karan, how are you? आज करण कुंद्रा से करण हबीबी हो I जाएंगे। am actually very excited. Come back to Dubai after a long time. When was See, the first time that she came? Oh my god, I was decades 25 मिनट ago. का एपिसोड है यार। Decades ago, yeah, I'm very old. देखते Yeah. हैं। So I think we were kids. We bunked college and we came to Dubai. I know, Oh, long story. wow. I know. Bunked college? Yes. Bunk Okay. college and With came hardly to any Dubai, money, क्या and, बात yeah, है। it was a surprise for our parents. But yeah, we were brats. So growing up. back then when you came, what was like something that you took back from Dubai that made you want to come back? The first time I saw this culture, I saw this Yeah. culture, I saw a lot of people coming from a lot of places, and so it was pretty exciting for me. Dubai is exciting. It's a mixed culture of so many Kashmir people from so Emporium। many places around the world. Yeah. हमें And लगता है यहाँ पे learn सारे जो है from ना them. साउथ It was a एशियन ही new होंगे। experience which sort of evolved me at that time because I'm from a small city, Yeah. and so it was pretty cool. So when you came the last time, did you pick up any slangs of Dubai? I actually no. Why don't you teach me? All right. I mean, I'll teach you the most basic one, which is Habibi. हबीबी। That's like dear, my love. But I mean, you can't just use it like with anyone because it Beloved। means my love, my dear. So if you go to her प्यारा। and you're like Habibi, she'll Oh. get offended. Yeah, so I need these warnings. Yeah, yeah. It's only for one person. Yeah. Can I use it on my mum? Oh yeah, of course. Oh, perfect. Even with like Tejasvi, of course. That's given. That's Yeah, that's good. तेजस्वी Yeah, the other one हबीबी। could be Lo Samahti. La samahti. ला Lo समझती। Samahti. La samahti. Yeah. What does that mean? Lo Samahti, I think it means like. ला give us, का like, मतलब some तो time, नहीं like, होता है। Lo Samahti, like sabar, like थोड़ी देर रुक जाओ. Oh, okay, Ah. yeah. I think so. Chill. I'm not sure. एक्सक्यूज मी। Chill. Okay. La samahti. That's nice. Okay, Karan. So we are in Old Seif. This is Yes. the Al Fahidi. This is the old side of Dubai. Al As Fahidi। you can see behind and all around us are like. some मतलब कितना local यहाँ पे shops. एक Now we have a कामनेस है conveyor इस shop as एरिया में, well. अनलाइक द रेस्ट ऑफ And दुबई। we're Indians. You're an Indian. Yes. And bargaining is sort of in our blood. It is. Is it? No? With the Yeah. best. Yes. ये तो सब में होती है, I'm the worst. पूरे साउथ एशिया I'm में। the worst. You'll see. All right. So we'll find out. So you have 10 minutes. I'm going to challenge you to get a kandura at the best price possible. कंदूरा। Best price possible For them. for you. Oh, okay. Okay, let's try this. All I right. haven't So done let's, this let's start. in a while. अच्छा वो मजाक नहीं था भाई, कंदूरा कोई ड्रेस है। ओके। Oh, thank you so much. ओके, नाइस। Size is good. ओके, जुब्बा टाइप है यार ये तो। The first time I'm actually getting this. So this is basically वो what जो Emiratis पहनते हैं wear, अरबी, this इसको white कंदूरा top बोलते हैं, called वो kandura. सही है। Yeah, I think it looks really nice. और कोई कलर है? अच्छा पहले मैं बताऊँ ये White. सबा बहुत बहुत अमीर है। ठीक है, तो जो भी प्राइस आप देने वाले हो ना मेरे को, आपको उससे 2 times या 3 times ये she's generous. She's so generous. She's known. ऐसा
सब कुछ हाँ, मेरी बनाया है। टिकट्स भी इन्होंने कराई हैं। अच्छा So we have to like फॉलोवर भी है ना? अच्छा? Absolutely. हाँ। Okay, let's go. पहनो भाई। अच्छा ये कंदूरा के नीचे क्या पहनते होंगे ये क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ भाई, Oh, that's ऑफेंड ना हो जाए ना। so you just put perfume on this and just let it be. वाह, वो भी बनाना है यार, वो ट्रेडिशनल रुमाल जो होते हैं। now एकदम you're looking local, you're looking like Karan Kandura. करण कंदू Good ये नहीं बनेगा। Oh my God, this is the beginning of something that I can see. सब मुझे अब करण कंदूरा बोलने वाले हैं, thanks to Sabha. सोचा नहीं, करण कंदूरा, अभी मेरे दिमाग में वही आता है करण कंदूरा। You got me here, no? It's like an inside joke of you guys, right? I would have done the same. I would have done the same. Good job. इतना बड़ा कैलकुलेटर लाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही हो जाएगा हमारा, ऐसे उंगलियों में हो जाता है। हाँ, तो मुझे बताओ इसमें ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें ना, हाँ, कंप्लीट ज्यादा हाँ वो ये स्पेशल कैलकुलेटर दुकान वालों ने रखा होता है, क्योंकि प्लस जो है ना वो 10 दफ़ा दबाते हैं। मतलब ऐसे पैकेज थी। वन बैक पैकेज और इसमें वो जो परफ्यूम भी लगा के Oh, देंगे। wow. तो 3 चीजें, चार चार। परफ्यूम भी लगा के दूंगा। लगा के परफ्यूम, दो। परफ्यूम, ये ये कंदूरा, स्कार्फ Scarf. और वो ब्लैक रिंग जिसको वो ब्लैक रिंग भी साथ में है। हाँ। Sorry. वो मारने के काम भी आता है ब्लैक रिंग, अगर सऊदी आप कहीं हो तो शुरते फिर रहे होते हैं। हाँ, इंडियन रुपीस में ना, परफेक्ट बिल्कुल सही है। 1800 दिरहम नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है। धर्म 1800, थोड़ा कम कर। इसमें क्या है भाई, पैकेज भी कौन ले से रहा हूँ मैं, ये कंदूरा कपड़े ले से रहा हूँ, बनाई है? ठीक है, परफ्यूम ले रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा और मैं पूरे हिंदुस्तान में पहन के इसको घूमूंगा। यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपकी दुकान पे। अभी बोलो, अभी अब मैं आपको डील देता हूँ। ये 1800 दिरहम था ना, 1900। सर हमारा मैजिक इसमें हमारा चलता है। हाँ हाँ, 19,000 रुपये आपको पेमेंट करनी है मेरे को बस। इंडिया में दूंगा। ठीक है, डन। आपके दिरहम्स भी इंडिया में पहुंच जाएंगे। चाहिए। सबा बहुत बहुत बिल्कुल नहीं। तो बहुत 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 अच्छा यूट्यूब चैनल है। इतना बड़ा आपका यूट्यूब चैनल है सबा, मतलब लोग हिंदुस्तान से दुबई में आए आपके चैनल पे आने के लिए, देखने के सिर्फ देखने के लिए। मैं तो आ भी गया खाना खाने के लिए। तो कितना देना चाहेंगे आप? आपका बार्गेनिंग चैलेंज अच्छा, ये है। मेरी बात है, मेरा बात मदद कर, चैलेंज है। फ्री माइंड ब्लोइंग। इससे बेटर, इससे नहीं बेटर। सकती फैन है हम। हाँ, ब्यूटीफुल। लिया नहीं? माय गॉड, पूरे इंस्टाग्राम पे करण कंदूरा होने वाला है, थैंक्स टू यू सबा। I mean, सच्ची में हो रहा है? so similar, कुंद्रा कंदूरा, you know. अब आप जब भी मिल दुबई में सुंदरा। what? No, I would अच्छा, never say that. चंद्रा। मैं बचपन में मतलब इतना वो यार हो जाता है बंदा, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपके ये मेरे साथ आए हैं, ये अपना turkey नेम का को ये बिगाड़ते मेरे हैं, यहाँ shoot चल रहा है, वो अपना लेकिन वो बड्डीज ही होती मजा हैं। कर रहे हैं। वेरी नाइस। बाय द वे, माय न्यू नेम इज करण कंदूरा, बट संभाल लेना बैक, डैमेज कंट्रोल प्लीज। हाँ, All right, Karan. So, हाँ ये मिडल ईस्ट ये दुबई मतलब दुबई इस के- नेबरहुड में ज्यादा लोग नहीं आते क्या? वीडियो के चक्कर में सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। ओह ओके फाइन, हम लोग शुरू करेंगे अपना खाने का जर्नी, बट उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपको कॉफी पसंद है? Do you like coffee? ओहो, I love coffee. I can't live without chai and coffee. We'll start with coffee. भाई We चाय के have, तो हम नशेड़ी हैं, आपको तो really पता cute होगा। Starbucks there, so let's start. हम पाकिस्तानियों की जेब में पैसे हो ना हो, चाय हमको पीनी है, कहीं से भी दो। हमारे वजीर ख़जाना परेशान हो गए थे कि हम $700 मिलियन की चाय पी जाते हैं। We're ready. Let's go. Yeah. Listen, फिर रेडी, लेट्स गो। स्टारबक्स भी जो है ना दुबई के स्टाइल में आ गए भाई, छप्पर स्टाइल। thank you for coffee. अच्छा ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे हमारा चाय का ढाबा होता है? Beautiful girl has got me coffee. Thank you so much. वो भी But दुबई में। दुबई की गर्मी में I know. I've seen it obviously on social media Yeah. and everywhere. But yeah, first Simplicity. time and it's perfect weather for this. yeah, and it's also like a lot of people come here because it's like known for the Instagrammable spot, and they come here take loads of pictures and all of Yeah. that. So it's Yeah, a very pretty or place. Kandura. Yeah. और कंदूरा। So okay, let's now finally talk about your journey. Where are you from in India? I am from a city called जलंधर। Okay. which is in Punjab, All right. and so my dad's a Punjabi, mom's a Malayali. Oh. They ओके, met in, मिक्स है भाई, हम तो long सारे ही पंजाबी I हैं। have 3 elder sisters. मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर तक तो हमें पता है, उसके बाद हमें नहीं So, पता। yeah, I happened कोई to, बताने वाला बचा नहीं ना। Start my journey in 2009, early 2009, January is when I started. And never
gone back. Where did you start? Like, how did your journey into the television industry start? It's very interesting. Around this time, 2008, November-ish, and Facebook was very, very new. A lot of people were not on there, so I somehow found Ekta Kapoor's Facebook account. There was no Instagram back then, and so I think that's how it all started. She saw me there. Somebody from her office got in touch with me, and they asked me if I wanted to, and I was like, I'm not an actor, and I'm not even in Mumbai. I'm in Punjab, but yeah, why not? And that's how it started. Wow, that's so like unlike the usual stories. Like Yes. people like have क्या struggled बात like है? even applying or getting noticed for that fact. Yes, But I was not even in Mumbai. wow, I got picked up on Facebook, and this was way back in 2008. being on a reality TV must be like, was it scary? Because a lot of people are like afraid of showing their true self because being an actor is like playing a role. But Absolutely. yeah. See, doing a show like Big Boss, it's a make it or break it kind of a situation. yeah, Because you cannot pretend on a show. 24/7 कोई pretend नहीं कर सकता. That your true self is going to come out, right? You can pretend to be a certain kind of image that you've created over the past years for 10 days, 20 days, 30 days later when you're cut off from the entire universe, and these are the only people, and then they're making you do tasks. Your reality is going to come out. So either people are going to like you, or people are going to absolutely hate you. Either you're made or you're done. Yeah, So it is a that's- big risk. It is a fan. It's हाँ, ये चीज़ हमने देखी है. बहुत सारे लोगों का करियर बिग बॉस ने बनाया भी है, बिगाड़ा भी है. you never know what. एंड आई डोंट नो यार, मतलब प्रियंकित, हम इन 2 कंटेस्टेंट को मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ. We और get angry, we get jealous, we get insecure. मुझे लगता है वो शो के लिए बने नहीं थे. Productive, sometimes you're not. and Big Boss is probably like one of the क्योंकि biggest वो reality. ना लड़ाई करते हैं, मतलब Yeah, ना गालम गलोच करते हैं. yeah, and I'm a fan actually. So I obviously watched the season that you were in as well, and हाँ, obviously मैंने rooting मिस for किया you था. and Tejasvi आई till वाज the end. वे So, बिजी. I want to know, like, even like in terms of you both, Big Boss like how 15 के your time. story came on television. That we all saw as an audience, we all saw that. Too But much how busy. did, like, अभी भी when होते हैं, you लेकिन went अभी back हम to the टाइम reality, निकालते हैं. How did things evolve? Well, we used to talk about it a lot. I don't know what's gonna happen. Yeah, What yeah. is life gonna be outside like? But I guess so the best part about Big Boss, it's a very stressful situation inside. हाँ. Yeah. Right? It's basically a simulation of life, but on steroids. Yeah. In those 4 months, you're gonna face problems. You're gonna face. They're gonna put you in situations where your compatibility is gonna come out. Your love for each other is gonna come out. It's extreme situation. Yeah. So it was pretty. We were very scared, but I remember saying that the worst is over. Yeah. And now it is a much easier life outside, and we faced a lot of things, but I guess बिग the बॉस fact ने ट्रेन that कर दिया we आपको. got close in a situation like Big Boss, when the world is a way easier Oh place. wow, really? Because that's a stressful situation. Everybody wanted us to fight. Everybody Yeah. wanted to pull us out. They knew we were strong. They knew आप Karan और तेजस्वी को अलग करोगे तो ही आपका chance होगा. All of that. Yeah, If you survive Big Boss, this real world is easy. Wow. And whatever a relationship sees in say 4 years, the turmoil, the ups and Yeah. downs, we saw it in 4 months. Yeah. We had our fights, we had everything, but we kept it very real. And when we came out, we realized that whatever we were showing inside to each other was actually who we are. We never hid anything from each other. I was not pretending to be somebody else, and she wasn't. Yeah. And that's how it is. It's been over a year and 2 months maybe. ओके, मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिए. द नेक्स्ट 10 मिनट्स का हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि ऐसे बड़ा हेक्टिक हो जाता है यार एडिट करना और फिर अपलोड करना. तो और डिस्कशन भी तो करनी है. अभी हमने तो अराउंड 15 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. तो जैसे ये बात कर रहे हैं भाई, अभी तक का जो हमने एपिसोड देखा है उसमें हमने देखा कि एक कोई नेबरहुड है दुबई का, अल फहादी डिस्ट्रिक्ट, और जहाँ इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, मतलब इतनी चमकीली भड़कीली जगह नहीं है. क्वाइट सिंपल, जैसे ओल्ड सिटी एरिया होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है, जिसको हम बोलते हैं अंदरून मोहल्ला. अगर आप रिलेट करें इंडो पार्क से, जैसे अंदरून शहर कहते हैं हम, यानी वो ओल्ड सिटी एरिया जो होता है. वर्ल्ड सिटी एरिया आपको पता है पहले हमारे यहाँ शहर कैसे होते थे. तो ये मेरे ख्याल में दुबई का ओल्ड सिटी एरिया है. और
मतलब चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, इवन कि नई नई शॉप्स, नए नए ब्रांड्स यहाँ पे सब अवेलेबल हैं, जैसे स्टारबक्स भी हैं, लेकिन क्वाइट सिंपल वे में है, ठीक है। तो वहाँ हमने देखा कि करण भाई ने जो है कंदूरा पहना, अच्छे लग रहे थे बाय द वे उसमें, और स्टारबक्स से अभी कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे हैं और अपनी बिग बॉस की जर्नी उन्होंने डिस्कस की। और लिटरली बिग बॉस, मैं कहता हूँ, करियर बनाता भी है, करियर किसी का बना बनाया बिगाड़ भी देता है। मतलब आप 4 महीने हो, 3-4 महीने एक घर में बंद हो विदाउट सेल फोन, आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो या तो सलमान खान आपको वीकेंड के वार पे दे रहे हैं, या फिर टास्क के थ्रू, या फिर वाइल्ड कार्ड आपको कुछ भी बता दें, आप वही सच समझ लेते हो। बट आई थिंक यार कि कुछ लोग कुछ लोग एक माइंड बना के आते हैं कि सिर्फ लड़ना है, और कुछ लोगों को हर तरह के लोग पसंद होते हैं, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। तो अभी जैसे इस करंट बिग बॉस में ना, अगर मैं कहूँ कि मेरा कोई फेवरेट है तो वो हैं प्रियंका और अंकित। मतलब वो बड़े सॉर्टेड हैं यार दोनों, बहुत ज़्यादा रियल लगते हैं मुझे। मतलब बिग बॉस कह कह थक गया अंकित को कि भाई कुछ कर कुछ कर, वो कहता है भाई मैं हूँ ही रियल लाइफ में यही, मैं फेक थोड़ी करूँगा, इट्स अ रियलिटी शो, मैं जो हूँ वो हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, ज़बरदस्ती निकालना है निकाल दो, अदरवाइज़ नॉमिनेट कर दो या नॉमिनेट करवा दो। और आप देख रहे हैं कि इज़ क्वाइट गुड एट हिज गेम। मतलब उसकी कैप्टनसी बड़ी स्मूथली गई, कोई लड़ा नहीं, घर के काम भी होते रहे। और जब हम देख रहे हैं कि अब, और बिग बॉस में दिन में 6-6 बार उसे बातें भी सुना आ रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं 3-3 कैप्टन है, लेकिन हर टास्क में लड़ाई हो रही है, आपस में उनकी लड़ाई हो रही है। तो आई डोंट नो कि मतलब क्यों। और जहाँ तक प्रियंका की बात है, देखें ये दोनों कंटेस्टेंट, एक ज़रा धीमे लहजे का है लेकिन वो दिमाग से खेलता है, मतलब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और फिर एक्शन लेता है। और एक जो है वो बड़बोली है, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी उसका प्रेशर कुकर का सीटी बज जाता है, लेकिन दिल की साफ़ है। जो मुंह पे दिल में होता है ना, फटाफट मुंह पे मार देती है, लेकिन दिल में कुछ नहीं रखती। बहुत सारे कंटेस्टेंट है वो मुंह पे कुछ नहीं बोलते, बैक बिचिंग करते हैं, दिल पे रखते हैं बात, लेकिन प्रियंका दिल पे बोल देती है। दिल की बात जो है ना ज़बान पे ला के फ़ौरन मुंह पे बोल देती है। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, उसे सुनने को मिलता है जी ये बहुत चीखती है, यानी अ, और किसी को कोई और पॉइंट नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है जी, बोलती बहुत है। तो भाई उसका वो नेचर होगा, रियल होगी। लेकिन एक बात है, उसको बात करने की तमीज़ है यार। मतलब एटलीस्ट वो गुस्से में भी होती है ना तो कभी भी गाली नहीं देती, अनलाइक मैनी अदर पीपल जो कि गालियाँ भी देती हैं और कुत्ता बिल्ली पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। बट स्टिल मुझे ये उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है कि गाली नहीं देती। मतलब मैंने उसका आज तक कोई शो नहीं देखा यार, और जिसका वो जिक्र भी करते हैं, उड़ा रही हैं शायद, जो उनका शो था अंकित और प्रियंका का, मैंने वो भी आज तक नहीं देखा। बट स्टिल बिग बॉस में आने के बाद, एक वीक के बाद आपको प्रेफरेंस अपनी पता लग जाती है, आप किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करेंगे। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम जो है ना तेजस्वी और करण की बात करते करते हम प्रियंकित और प्रियंकियत पे आ गए तो सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन इट्स गुड यार। मतलब जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना कि बिग बॉस में क्या होता है आपका, वो बिल्कुल करेक्ट बात है। और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का चेहरा भी नज़र आ जाता है, कुछ लोग गलत भी पोर्ट्रे हो जाते हैं। बट 3-4 महीने में देख के आप किसी को ये नहीं कह सकते वो हमेशा से ही ऐसे स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है बंदा। आपको कुछ लोग पसंद ना हो और उनके साथ रहना हो तो आप समझ सकते हैं आपको कैसा फील होगा। बट मज़ा आया देख के। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीक कर लें, या आप दिन बता दें कब करें, तो जल्दी करेंगे जब भी करेंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू गाइज। बहरहाल करण कंदूरा है, सबा जो है इनसाइड जोक था, आज पता लगा होगा करण भाई को। चलो मज़ा आया देख के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। सी यू गाइस।